Good morning, my dear students. As we know that we were discussing about the types of industries, 11th business studies, chapter name first, nature and purpose of business. Now we will discuss about third type of industry, that is known as tertiary or service industries. These are the service industries. टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री जो होती है इंडस्ट्री वो होते हैं दीज आर द सर्विस इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे हमने पढ़ा है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज थी, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज थी। ये टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। These are the industries which are established only for providing services to the primary as well as secondary industries, such as first transport. There are so many industries which are directly involved in transporting, and transporting helps in movement of goods from one place to another place. As we know that goods they are manufactured at the factory side, but they are consumed at the site of the consumers. Then there is a gap between the place of production and place of consumption. So this gap, place of production and place of consumption, should be filled out by transportation. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ देती हैं। गुड्स जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो तो होती हैं फैक्ट्री की साइट पे। सपोज करो कि फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में, कंज्यूमर्स हैं सोनीपत में, दे आर कंज्यूमिंग द गुड्स, देन गुड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन एमपी मध्य प्रदेश, देन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट द गुड्स दे कैन मूव फ्रॉम मध्य प्रदेश टू सोनीपत, एंड दिस फैसिलिटीज प्रोवाइड कन्वीनियंट टू द कंज्यूमर्स सो दैट दे कैन गेट देयर प्रोडक्ट एट देयर पैलेसेस. Second one, banking. Some of the industries who are involved in banking services, or we can say that banking that provide credit facilities to industries and trading firms. There are so many trading firms. Trading firms means who are purchasing the manufactured goods and they are sold out to the another parties. So banking industries are also exist, or some of the service industries who provide banking services such as providing loan or credit facilities to the industries. Third one is insurance. As we know that there is a requirement of, or we can say that there are so many types of risk are exist in case of business. So these are the industries which are related to insurance, and these industries they cover the various type of risk of the industries. इंडस्ट्री में बहुत सारे रिस्क होते हैं बेटा। स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने से डैमेज हो गया। वी आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स, हम गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो देर में भी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ मैनी अनसर्टेनिटीज़। जैसे समुद्री जहाज से माल लेके आते हैं तो समुद्री जहाज में समुद्र में जहाज डूब सकता है, बाई एयर गुड्स लेके आ रहे हैं तो ये क्रैश हो सकता है, और देर आर सो मैनी रिस्क विच आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस. नेक्स्ट, warehousing. These provide storage or warehousing for goods produced by primary and secondary industries. Suppose the final goods they are manufactured and they are finalized by the primary as well as secondary industries, but there will be a time gap between the time of production and between the time of consumption. कंजम्पशन से सम ऑफ द सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड व्हेन दे आर नॉट डिमांडेड एंड दे आर टू बी सप्लाइड व्हेन दे आर डिमांडेड. कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं जो सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन इनकी डिमांड तो सर्दियों में होती है, लेकिन इनको मैन्युफैक्चर अर्लियर में कर लिया जाता है गर्मियों में. सो देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को दे प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़. तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट बनाती हैं
उनको जब तक वो कंज्यूम नहीं होते तो उनको वेयर हाउस सेपरेट किया जा सकता है। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अगर हम बेटा बड़े बड़े स्टोर बनाएंगे, लैंड को खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो इसलिए जितने प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर नॉट प्रेफर टू मेंटेन देयर सेपरेट स्टोर, देन दे आर टू टेक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। एंड एट द एंड, advertising. As we know that this is the most popular modern concept of marketing, and in present days, without, we can say that without advertising, product cannot be sold out easily in the market. So some of the industries are exist who provide advertising facilities. These provide information of the goods or products produced by primary and secondary industries, and this involves providing information to the consumers or to the general public. तो these are the facilities. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, वो एडवर्टाइजमेंट करती है। दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टीजमेंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। एडवर्टीजमेंट क्या है? Advertisement is the process by which each and every industry he provide necessary or various information regarding their product to the consumers, to the general public. By giving informations or knowledge, and by giving importance, by giving the benefits of their product to the ultimate consumer, so that they can buy it in future. अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को, आम पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देना ही एडवर्टीजमेंट कहलाता है। तो बेटा ये कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं विच प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजमेंट। दीज 5 points such as transport, banking, insurance, warehousing, advertising. These are also known as functions of commerce. These are also known as functions of commerce, or we can say that this is also known as role of commerce. These are also known as trade and auxiliaries. To trade. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। दीज आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड को सहायक बनाती है, उनको इजी बनाते हैं। सो दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।